Yes. Hello, everyone. Am I audible? Okay. So yesterday we have discussed about the dissolution of a partnership firm. We have talked about the dissolution of a firm and dissolution of partnership, and we have talked about realization account. Okay. So let's recapitulate the points. First of all, realization. Waiting for someone. Chaliye, let's recapitulate the point. Dissolution of partnership means the existing partnership will come to an end, like the relation which they have. Okay. Change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner. If any one of the event takes place, so this will be dissolution of partnership, right? And dissolution of firm means the business is going to wind up. Okay. The no existence of the business will be there. Then we have talked about realization account. So realization account is vasuli khata. We transfer the assets to the debit side from the balance sheet and we transfer the liabilities to the credit side. Okay. Then we pay off the liability in the debit side and we realize the assets in the credit side. The method we have discussed yesterday, complete method we have done. Now let me take one example. Yesterday we have discussed about the format. Today I'm going to take one of the examples here. Let's take this illustration number 10. This is DK Goyal. Okay. Illustration 10. G and M were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as follows. So here the balance sheet is given. Creditors 50,000, outstanding expenses 45,000, provision for doubtful debts is 5,000, 9% loan, capital of the partners. And here bank, other current assets, machinery, land and building, patents, profit and loss, and goodwill. Okay. Now I've just told you we have to transfer the assets, right, to the debit side of the realization, except a few things. Yesterday, very important point we forgot to discuss, that is cash and bank. कैश एंड बैंक भी हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि कैश और बैंक को आप क्या रियलाइज करेंगे, इट इज ऑलरेडी रियलाइज्ड, राइट? इट्स द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द असेट्स, फाइन. तो हम कैश एंड बैंक को भी नहीं लेते हैं यहाँ पे. So we have to take other current assets. It's of 4,80,000 we have written here. Machinery 7 lakh we have taken. Land and building 15 lakh we have taken. Patents 10,000 we have taken. Profit and loss we don't take, right? क्योंकि assets का profit and loss क्या होता है? It is a loss. It's having the debit balance. इधर होता है तो वो credit balance होता है, आपकी गुल्लक होती है, reserve वाला होता है ये, and goodwill we take here. ठीक है, तो ये assets हमने ले लिया है. While taking the assets, the point should come in your mind कि कौन सी tangible है और कौन सी intangible है. Here we can see patents and goodwill are intangible assets and remaining are tangible assets which we can see and touch. Okay. नाउ लाइबिलिटीज से हमने ट्रांसफर किया, क्रेडिटर्स को हमने ले लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ले लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ले लिया. प्रोविजन के लिए लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे आपको जो डेटर्स दे रखे होते हैं, है ना, तो डेटर्स में से आप इनको माइनस भी कर सकते हैं और सीधा दूसरी तरफ ले भी सकते हैं. एंड इन दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव द डेटर्स, बट ये आपको प्रोविजन दे रखे हैं तो आपने एज इट इज इनको ले लिया है. देन 9% लोन इज देयर 15 लाख, ये हमने ले लिया है. कैपिटल्स हम नहीं लेते हैं, ठीक है. अगर रिजर्व वगैरह होता तो भी वो हम नहीं लेते यहाँ पे. तो वी हैव ट्रांसफर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस रियलाइजेशन एंड मेकिंग द पेमेंट.
इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहा है इंस्ट्रक्शन में, ध्यान से पढ़ना है। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड, राइट, इस डेट को फर्म आपकी डिजॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है। अदर करेंट असेट्स रियलाइज्ड 10% लेस। तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से समझना है, जैसा कहेगा वैसे हमें करना है कि कम पे रियलाइज हुई है, ज़्यादा पे हुई है, या कोई और उन्होंने गाइडलाइंस हमें दी हैं। तो अदर करेंट असेट्स, जस्ट लुक फॉर द अदर करेंट असेट्स, कितनी दे रखी है, 4,80,000 दे रखी है। तो 4,80,000 की आपकी अदर करेंट असेट्स हैं, और इन्होंने कहा है 10% लेस पे रियलाइज होगा। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 48,000। तो 4,80,000 में से 48,000 आप माइनस कर देंगे, राइट। तो दैट कम्स 4,32,000, ठीक है। सो बाय बैंक करके क्या रियलाइज कर रहे हैं, अदर करेंट असेट्स। हमने क्या कैलकुलेट किया, 4,32,000। तो 4,32,000 आप बाय बैंक करके अदर करेंट असेट्स में यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमें बैंक दिया हुआ है, तो हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो हम इसको कैश के बदले किस में रियलाइज करेंगे, बैंक से हम पेमेंट लेंगे। तो बाय बैंक करके आ गया, एंड जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे उनके नाम से आपको दिखाना है। आगे बोल रहा है मशीनरी वॉज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द मशीनरी। मशीनरी आपकी 7 लाख की थी और बोला है कि बुक वैल्यू पे ही उन्होंने बेची है। सो वी हैव रिसीव्ड हाउ मच, 7 लाख रुपीज। तो बाय बैंक करके 7 लाख आ गया। ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कौन सा पैसा किस चीज़ से मिला है, तो इसलिए ये नाम हमें लिखना है, ये ब्रैकेट में भी आप डाल सकते हैं। देन ही सेड 9% loan was discharged together with unrecorded interest of rupees 1,35,000. Pay attention please. 9% लोन आपको दे रखा है 15 लाख का, जो यहाँ पर आपने ट्रांसफर कर लिया था 15 लाख का, ठीक है। और कहा है कि 9% लोन वॉज डिस्चार्ज टुगेदर। डिस्चार्ज यानी कि इसकी पेमेंट कर दी है आपने, किसके साथ में, टुगेदर विद अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, एंड उसकी वैल्यू भी इन्होंने कैलकुलेट करके दे दी है। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। तो 1,35,000 अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट एंड 15 लाख यू हैव पेड। तो हाउ मच टोटल, 15 लाख प्लस 1,35,000, तो दिस इज योर 16,35,000। एंड लाइबिलिटी की पेमेंट आप क्रॉस की तरफ करेंगे ना, असेट्स का इधर और लाइबिलिटीज का इधर। तो हियर यू हैव मेड द पेमेंट टू बैंक 9% loan, it is 16,35,000, right? Next it is telling expenses on dissolution amounted to rupees 10,000. डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस है वो 10,000 हुए हैं, तो टू बैंक करके एक्सपेंसेस पेड, ये आपका यहाँ पे आ गया 10,000, ठीक है। तो इसने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो हमने पूरी कर ली है। वी हैव फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड वी हैव नोटेड इट डाउन, राइट। नाउ यूज योर माइंड। आई हैव टोल्ड यू समथिंग यस्टरडे कि अगर आपको असेट्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी टेंजिबल असेट्स हैं उनके लिए पूरा अमाउंट रियलाइज हो जाएगा, और इनटेंजिबल असेट्स है तो उनके लिए रियलाइजेबल वैल्यू निल हो जाती है, वी डोंट गेट एनीथिंग, ऑलराइट। सो अदर करेंट असेट्स हमारा रियलाइज हो गया, मशीनरी 7 लाख का हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का भी हो गया हमारा, नहीं लैंड एंड बिल्डिंग का इंस्ट्रक्शन नहीं है, ध्यान दीजिए। मशीनरी वॉज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, मशीनरी तक की इंस्ट्रक्शन थी जो बुक वैल्यू पे 7 लाख था। नथिंग इज गिवन अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग। नाउ दैट थिंग विल बी अप्लाइड हियर, दैट फार्मूला विल बी अप्लाइड हियर, कि यहाँ अदर असेट्स यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं बोला है, तो हमें फुल वैल्यू पे जो भी उसकी वैल्यू थी वो उस पर पे कर देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 15 लाख है, राइट, यू कैन सी है। तो पूरे का पूरा 15 लाख हमारा बाय बैंक करके ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख का हमारा रियलाइज हो जाएगा। आई गिव यू वन सजेशन स्टूडेंट्स, कि ये जो हमने यहाँ इंटरनली लिखा है ना, इसको आप एक्सटर्नली भी लिख सकते हैं या बाहर के कॉलम में भी लिख सकते हैं, तो दैट्स बेटर, क्योंकि यहाँ पे आप अंदर लिखेंगे तो यहाँ का एक टोटल आ जाएगा, और अगर इस पॉइंट में कहीं भी आपकी कोई गलती हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और ये वाला आप बैंक में उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ आपके ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे।
ठीक है। और अगर आप सेपरेटली लिखेंगे, मान लीजिए एक ही पॉइंट में गलती है, तो दे विल कंसीडर कि रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वर करेक्ट एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन वन पॉइंट ओनली। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू टू राइट इट सेपरेटली इन द आउटर कॉलम। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ हमारा असेट्स का पूरा हो गया। अब पेटेंट एंड गुडविल के बारे में भी कुछ नहीं कहा, एंड दीज आर व्हाट, कौन सी असेट्स हैं, टेंजिबल या इंटेंजिबल? These are intangible assets, so their realizable value is nil. So we did not show anything. तो यहाँ हमने इन assets के लिए कुछ भी नहीं दिखाया है. Okay. Now we'll talk about liabilities. Liabilities में हमारे creditors थे 50,000 के. हमें क्या instructions मिली हैं? करंट एसेट्स का हो गया, मशीनरी का हो गया, लोन का हो गया, लोन डिस्चार्ज का हो गया, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट हो गया, एंड एक्सपेंसेस का हो गया. सो दे डिडंट से एनीथिंग अबाउट द क्रेडिटर्स. ऑलराइट, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है. सो वी हैव टू पे. क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा है 50,000, तो हमें पूरे के पूरे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देनी है. टू बैंक करके क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी हम पूरा अमाउंट पे कर देंगे. ओके, सो टेक केयर ऑफ ऑल दैट. तो ये हमारे जो भी हमने रूल्स कल पढ़े थे उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया. ओके, नाउ नथिंग इज गिवन, द क्वेश्चन इज नॉट वेरी लार्ज. सो नाउ वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू बैलेंस द अकाउंट. अब इस अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे एज यूजुअल, जितने भी हमने बैलेंस किए हैं उसी तरह से करना है. दोनों तरफ का टोटल करेंगे, जो ज़्यादा होगा दोनों तरफ लिख देंगे. हियर द डेबिट साइड इज द लार्जर वन, 45,50,000 है, सो आई हैव रिटन एट बोथ द साइड्स. एंड क्रेडिट साइड इज लैकिंग बाय 3,18,000. क्रेडिट साइड हमारा 3,18,000 से कम है, तो यहाँ पे हमने 3,18,000 लिख दिया. एंड दिस इज द लॉस. ओके, जो क्रेडिट साइड में आपका बैलेंसिंग फिगर है दैट शोज द लॉस, और अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर होती है तो दैट शोज द प्रॉफिट. ओके, बिकॉज वेन एवर योर डेबिट इज एक्सीडिंग ओवर द क्रेडिट दैट क्रिएट्स द लॉस. तो ये लॉस किस रेशो में बटेगा? जो भी आपका रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, 1 and only 1 रेशो, स्टार्टिंग G&M for the partners in 3:2. Okay, there is no tension of the sacrificing ratio, gaining ratio, new ratio, nothing of the sort. सिर्फ हमारा यही वाला रहेगा. तो 3:2 में आपने ये डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हैज बीन कंप्लीटेड है. ऑलराइट, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ we will do something. We are back on illustration number 1, right? Illustration number 1 is telling you something about workman compensation reserve, how to deal workman compensation reserve in this chapter. ठीक है? So Lavanya and Priya were partners sharing profits in the ratio of 2:1. Past journal entries for the following transactions at the time of dissolution of firm. देखो, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि द बेसिक शुड बी क्लियर. दिस इज योर बैलेंस शीट, दिस इज लायबिलिटी साइड, दिस इज असेट साइड. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम्स टू दिस साइड. ठीक है, आपको जो भी फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1,50,000, राइट? The concept is, the basic concept is कि workman compensation reserve is containing credit balance. All the items which are shown under liability head, as you have capital, loan, profit and loss, general reserve, right? Bank loan है, anything else, outstanding expenses, workman compensation, investment fluctuation फंड. तो इन सब के बैलेंसेस क्या है? क्रेडिट बैलेंस होते हैं. लायबिलिटी में जितने भी होंगी चीजें वो सब क्रेडिट बैलेंस है. एंड असेट्स में जो जो आइटम होंगे उन सब के बैलेंसेस क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं. ठीक है, तो अब अगर मुझे इस चीज को खत्म करना है, इसको ब्रेक करना है, इस गुल्लक को तोड़ना है, तो हमें क्या करना होता है? इसको रिवर्स कर देना है. इफ इट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ओके, सो in all the conditions workman compensation reserve account will be debited, right? ये गुल्लक हमें तोड़नी ही तोड़नी है. ठीक है, तो हर कंडीशन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 से डेबिट करना ही होगा. ठीक है, तो एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक ऑन द क्वेश्चन.
So it's telling workmen compensation reserves stood at rupees 1,50,000 in the balance sheet and there was no liability towards workmen compensation. So it's telling कि workmen compensation reserve 1,50,000 है बैलेंस शीट में और कोई liability नहीं है, यानी कि nothing is given. Okay, तो हम क्या करेंगे? Use your mind कि क्या करेंगे. 1,50,000 था आपका और कोई लाइबिलिटी नहीं है. लाइबिलिटी नहीं है तो दिस विल नॉट गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट फॉर द पेमेंट. ठीक है, तो किसको मिल जाएगा ये रिजर्व? गुल्लक है, कोई इसमें लाइबिलिटी नहीं है. पहले वाले चैप्टर्स की तरह, एडमिशन एंड रिटायरमेंट की तरह, दिस अमाउंट विल गो टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो लावण्या एंड प्रिया को मिल जाएगा एंड देयर रेशियो इज गिवन 2:1. ठीक है, होप यू आर कंफर्टेबल दैट वे. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्या एंड प्रिया 2:1 में हमने डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज ascertained at rupees 90,000. राइट, द सेम अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी आपकी दे रखी है 90,000 की. ठीक है, तो लाइबिलिटी का जो अमाउंट है, जितनी लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई है, दैट पोर्शन विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, और बाकी बचा हुआ हम पार्टनर्स को बांट देंगे. तो दिस वाज स्पेशल इन दिस चैप्टर. ओके, सो जस्ट रिमेंबर, पहले वाले चैप्टर्स में हम क्या करते थे? ऑफ कोर्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,50,000 ऑफ कोर्स. ठीक है, अब इसमें से आप इकट्ठी करें एंट्री, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. यू हैव लर्न लाइक दिस. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो पोर्शन हमारा क्लेम किया गया है, लायबिलिटी है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में. तो कितना क्लेम किया गया है? 90,000 क्लेम किया गया है इस क्वेश्चन में. तो आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? टू रियलाइजेशन अकाउंट. राइट, 90,000 आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, नाउ रिमेनिंग अमाउंट, यूज योर माइंड वंस अगेन. यू डोंट हैव टू क्रैम, रटना नहीं है कुछ भी. ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको आता है सब कुछ ऑलरेडी. कि ये आपकी गुल्लक थी, इसको तोड़ा, जो क्लेम हुआ वो आपने पे कर दिया. किसके थ्रू? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू. एंड बाकी का किसको जाएगा? पार्टनर्स को, ऑफ कोर्स. सो लावण्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू Priya's capital account. Okay, so remaining amount 60,000 will be divided in the ratio of 2:1. ठीक है, तो ये इन दोनों को हम दे देंगे. 2:1 में 60,000 को आप करेंगे तो that comes 40,000 and 20,000. So that way you can pass one combined entry also, and as it is shown in the book, you can pass it separately. ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 90,000 से एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लावण्या एंड प्रिया रिमेनिंग 60,000. अब इसमें आप दोनों ही कंडीशन में देखें कि वर्कमैन कंपनसेशन टोटल करेंगे तो 90 एंड 60, दिस विल बी 1,50,000 इन द डेबिट साइड. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट, कि ये तो आपने ट्रांसफर कर लिया, आपने दिखा दिया, लेकिन जो हमारा क्लेम हुआ है 90,000 का, दैट वी हैव टू पे ऑल्सो. राइट, और पेमेंट कहाँ करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने सीखा था, तो यहाँ पे आपने ट्रांसफर, पेमेंट कहाँ करते हैं? यहाँ. ठीक है, तो पेमेंट की हमेशा एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो यू कैन सी हियर द थर्ड एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आपने 90,000 पे कर दिया है. ठीक है, are you getting? Next is given workman compensation reserve. Third one, workman compensation reserve stood at rupees 1,50,000 in the balance sheet and liability in respect of it was ascertained at rupees 1,50,000. आपका रिजर्व भी 1,50,000 है और लाइबिलिटी भी 1,50,000 की ही क्रिएट हुई है. तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी लड़ाई खत्म. सीधा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डेबिटेड बाय 1,50,000 एंड रियलाइजेशन का हो गया 1,50,000. पूरा आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है. एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा? यू हैव टू मेक द पेमेंट एज वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ 90,000. फिर आप कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000. ठीक है, तो यानी कि आपने पहले यहाँ पे ट्रांसफर किया और फिर यहाँ पे पेमेंट कर दिया. यहाँ पे क्या स्पेशल पढ़ रहे हैं आप कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस चैप्टर्स, कि प्रीवियस चैप्टर्स में वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ रियलाइजेशन अकाउंट से आप डील करते थे?
आई एम सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से डील करते थे और यहाँ किससे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आपका पेमेंट करना है, जितना क्लेम हुआ है वो आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पेमेंट कर देंगे और बाकी का सीधा उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट इज वर्कमैन compensation reserve stood at rupees 1,50,000 in the balance sheet and liability in respect of it was ascertained at rupees 2 lakh. Okay. तो जो हमारा रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ओनली 1,50,000, बट लाइबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, इट इज वेरी वेरी सिंपल, यूज योर माइंड, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको तो आपको डेबिट करना ही करना है, ठीक है। तो जितना आपने डेबिट किया रियलाइजेशन में उतना ही आप ट्रांसफर कर रहे हैं और ये आपको पेमेंट करना है सीधा, ठीक है। सो द फर्स्ट एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होल 1,50,000 यू विल ट्रांसफर, ठीक है। सो इफ आई टेक इट लाइक दिस, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना दे रखा है उतना आपने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब ये कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है आपने ना बनाया हो, फिर भी हम लायबिलिटी तो यहाँ पे करेंगे ना, और लायबिलिटी कितनी आई है यहाँ पे 2 लाख, तो आप सीधा 2 लाख यहाँ पे पे कर देंगे। हार्डली मैटर कि आपके पास यहाँ पे कम है, ज्यादा है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग? अगर ये नहीं भी दे रखा, जीरो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और लायबिलिटी आ जाती है, तो आप यहाँ पे कर देंगे, रियलाइजेशन टू बैंक पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फंड हमारा कम है और पेमेंट ज्यादा है, कोई बात नहीं, जितना है उतना यहाँ ट्रांसफर करो, जितना पेमेंट है वो यहाँ कर दो, ठीक है। यू कैन सी द एंट्री यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। Next and last we have, there was no workman compensation reserve in the balance sheet and firm had to pay 40,000 as compensation to the workers. The same situation as we have discussed कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं बना हुआ वर्कमैन कंपनसेशन का और सीधी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो सीधा यहाँ पे कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आप 40,000 पे कर देंगे, ठीक है। So you can see here realization account debit to bank 40,000. When you don't have any गुल्लक, तो how to break that? कैसे फोड़ोगे? जब गुल्लक ही नहीं दे रखी है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, है ना? All right. So that's all in this workman compensation वाला point. And next we have, this is a little bit lengthy question, but okay, let's start it. या नहीं, लंबा हो जाएगा ये. We'll take this illustration tomorrow, this realization expenses wala. Let's take something else. We'll talk about revaluation and realization differences, right? Difference between revaluation account and realization account. Okay, it's very simple. You have done both the accounts. So when prepared, कब बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। एंड रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। इसको बनाने का क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है इसका? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to make necessary adjustments in the value of assets and liability because business is still continuing and you know at the time of admission retirement I have to find out कि किसी को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो he or she will be participating in all the assets and liability, तो उसके आने से पहले जो भी फायदा नुकसान है वो हमें पुराने पार्टनर्स में बांट लेना है, तो that way this is the objective to prepare this, right? एंड रियलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कि आपने असेट्स को बेचा है, पैसा रियलाइज किया है, लाइबिलिटीज को पे किया है, राइट? तो इन द होल प्रोसेस डिड यू गेट सम गेन और लॉस और व्हाट? कुछ आपको असेट्स को बेचने से, लाइबिलिटी को पे करने से कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? व्हाट इज द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है? तो that is the purpose. Result क्या है? What is the outcome? Even after the preparation of revaluation account, the firm continues to function
though with a changed relationship among the partners. रिवैल्यूएशन आपने बनाया, बट बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? बिजनेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द न्यू पार्टनर्स. बिजनेस आपका चल रहा है, चाहे तो चेंज इन रेशियो था, एडमिशन था, रिटायरमेंट था, डेथ था, वॉट एवर वॉज द बिजनेस वॉज इन द कंटिन्यूएशन. एंड हियर बिजनेस हैज कम टू एन एंड. रियलाइजेशन का मतलब असेट्स को बेच देना और लायबिलिटी को पे कर देना, यानी बिजनेस खत्म. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ असेट्स and liabilities recorded. Value of assets and liabilities recorded. आप किस तरह से assets and liabilities की value को record करते हैं? Here only the difference between the book value and the revised value of assets and liabilities recorded in this account. You have done the revaluation account and you know it very well कि जो चेंज है, जैसे मान लीजिए मेरी 10,000 की असेट्स थी और उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, तो क्या हो रहा है? असेट्स की वैल्यू कम हो रही है. कम हो रही है तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम करते थे, राइट? एंड सपोज 10,000 के बदले 15,000 हो जाती है असेट्स की वैल्यू, तो 5,000 इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है, फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती थी. तो दैट वे वी वर रिकॉर्डिंग. ओके, एंड हियर द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, the realized value of assets and the actual payment of liabilities is recorded in this account. इस अकाउंट में सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट से assets and liability को ट्रांसफर करते हैं, फिर उनको बेच के जो पैसा रियलाइज होता है वो आप मेंशन करेंगे, एंड लाइबिलिटीज को जो पे करना है वो आप मेंशन करेंगे. ठीक है. एंड द लास्ट वन, व्हेन प्रिपेयर्ड, this account may be required to be prepared many times during the lifetime of a firm. Many times it can be prepared. कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है. तो जब भी और जितनी बार होगा, यू हैव टू प्रिपेयर दिस. एडमिशन, नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन अ फर्म, right? So the number of time partners are taking admission, we have to prepare this account. As same thing is applicable in case of retirement and death also. ठीक है. तो this can be prepared number of time in the lifetime of the partnership, and this can be done once only. This account is prepared only once during the lifetime of a firm, because जब भी आपकी फर्म बंद होती है, वाइंड अप होती है, तभी इसको बनाते हैं, ना उससे पहले और बाद का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. ठीक है. सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट. ऑलराइट. सो वंस अगेन लेट मी टेल यू, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू विदाउट यू, है ना? आप अपनी हेल्प खुद करेंगे तभी आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी. जब तक आप इसको खुद नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ भी बताया गया है इसको आप रीड नहीं करेंगे, तो it's not going to enter in your mind. Okay, so please revise the things, go through the chapter and do the illustration which I have told you, and do the back questions also related to revaluation account. Just try to do more and more revaluation account. You will have some doubts, so that will be cleared. Okay, thank you so much for joining. That's all in today's class.